हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमनदीप कौर। वेलकम बैक टू द चैनल अमन सिद्धू मैथ्स। और हमारी इस वीडियो का टॉपिक है क्लॉरेंट्स इक्वेशन। दिस टॉपिक कम्स अंडर द नेम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y is equals to x gp any function plus f of p any function is Lagrange's form. Mark this as equation number 1. This is Lagrange's form of equation and इसका स्पेशल केस है कि if gp जो कोई फंक्शन है उसकी अगर वैल्यू p के इक्वल हो जाए देन इक्वेशन 1 becomes y is equals to xp plus f of p and this equation is known as Lorentz equation. Lorentz equation. This is also written as y is equals to px plus f of p. This is Lorentz equation and solution of Lorentz equation is very simple. We just have to put p is equals to c where c is any arbitrary constant. Then solution of Lorentz equation is y is equals to cx plus any function of c where c is arbitrary constant. This is the solution of Lorentz equation. Next is article. Prove that the general solution of Lorentz equation जो है वो क्या है, y is equals to cx plus f of c where c is any arbitrary constant. तो अब हमने ये बताना है कि Lorentz जो इक्वेशन है उसका सोल्यूशन हम p is equals to c फिल करके क्यों लिखते हैं, उसके बेस पे ये आर्टिकल है. नाउ लेट्स डू दिस आर्टिकल. Given differential equation is y is equals to px plus f of p. Mark this as equation number 1. This is the given differential equation. Differentiate this equation. Differentiate equation 1 with respect to x. x के साथ हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है. देन वी हैव dy by dx और p और x दोनों x के फंक्शन है. दैट मीन्स यहाँ पे u इंटू वी रूल यूज होएगा. p एज ए डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 आएगी. x एज ए डिफरेंशिएशन ऑफ p इज dp बाय dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इज f डैश p इंटू dp बाय dx. नाउ वी नो दैट कि dy बाय dx जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, p. दैट मीन्स हियर वी हैव p इज इक्वल्स टू p प्लस यहाँ से हम x प्लस f डैश p में से dp बाई dx कॉमन ले सकते हैं. नाउ यहाँ पे जो p है और ये p दोनों पॉजिटिव है. अगर मैं इसे इस साइड लेके जाऊंगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा और दोनों कैंसिल हो जाएंगे. एंड वी आर लेफ्ट ओनली विद x प्लस f डैश p इंटू dp बाई dx इज इक्वल्स टू 0. Okay, now this factor does not contains any term of dp by dx, so rejecting this factor या फिर rejecting this factor and we have to work only with this factor. So we have dp by dx is equals to 0. From here dp is equals to 0 क्योंकि dx अगर राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो 0 बन जाएगा. एंड आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी गेट, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी. दिस इम्प्लाइज p is equals to c where c is any arbitrary constant. Okay, now put this value of p is equals to c in equation number 1. Equation number 1 is y is equals to px plus f of p. This is the equation number 1. इसमें अगर हम p is equals to c फिल करेंगे then we have y is equals to cx plus f of c where c is any arbitrary constant which is required solution of given differential equation या फिर Lorentz form of equation का ये solution होता है. Next is example. Solve y minus xp p minus 1 is equals to p and this equation may be converted into Lorentz form by some simplifications. Firstly, if I write y minus xp and p, दिस टर्म अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी तो ये p माइनस 1 इसे p को डिवाइड कर देगा. देन यहाँ से मैं y इज इक्वल्स टू एक्स पी प्लस p ओवर p माइनस लिख सकती हूँ.
Now this becomes Lorentz equation, that is this equation is of the form y is equals to xp plus f of p, where fp की जो वैल्यू है वो क्या है, p ओवर p माइनस 1। तो ये इक्वेशन जो है ये क्लॉरेंट्स फॉर्म की है। तो क्लॉरेंट्स फॉर्म की जो इक्वेशंस होती हैं उनके सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, जो p है उसकी वैल्यू c फिल कर देते हैं। सोल्यूशन ऑफ दिस फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स y इज इक्वल्स टू xc प्लस c over c minus 1, which is the required solution of given differential equation या फिर Lorentz equation। ओके, तो ऐसा तो होएगा नहीं कि सभी इक्वेशन हमें ऐसे ही गिवन हो कि वो पहले ही Lorentz फॉर्म में हो। अगर कोई इक्वेशन Lorentz फॉर्म में नहीं है तो पहले हमें इसे Lorentz फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। अब हम इस बेसिस पे एक एग्जाम्पल करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ आफ्टर सीइंग दिस इक्वेशन, दिस इज ऑब्वियस कि ये दिखने में डायरेक्टली तो हमें लग ही नहीं रहा कि Lorentz फॉर्म की इक्वेशन है जिसका हम डायरेक्टली सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशंस या फिर डिवाइड या मल्टीप्लाई करके इसको पहले रिड्यूस करना पड़ेगा Lorentz फॉर्म ऑफ इक्वेशन में, तभी हम उसका फॉर्मूला जो है सोल्यूशन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, मार्क दिस एज नंबर 1। नाउ मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू y बाई एक्स। y बाई एक्स के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। वी हैव a x y स्क्वायर p स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। अभी आपने कुछ भी कटिंग नहीं करनी, एज इट सिंपल लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस बी, यहाँ पे क्या आएगा p इंटू वाई बाई एक्स माइनस यहाँ पे x y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। ये वैल्यूज आ रही हैं इज इक्वल्स टू 0। ये तो आप एक कट कर सकते हो, इसको आपने कटिंग नहीं करनी। अगर मैं यहाँ पे ax और y स्क्वायर यहाँ पे y बाई पी एक्स का होल स्क्वायर कर दूँ, तो यहाँ पे x की तो सिंगल पावर थी लेकिन मैंने उसको होल स्क्वायर कर दिया, तो उसकी एक पावर मैं बाहर ले लूँगी, तो ये x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा a y स्क्वायर p स्क्वायर। सेम चीज़ बन रही है। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस बी p इंटू वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। नाउ मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू डू सम सब्स्टिट्यूशंस। तो हम यहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे। पुट एक्स स्क्वायर जो है उसको हम कैपिटल एक्स फिल करेंगे, वाई स्क्वायर को फिल करेंगे कैपिटल वाई। तो अब इनकी अगर डिफरेंशिएशन करें तो वी हैव 2x dx इज इक्वल्स टू कैपिटल dx, एंड यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएशन तो 2y dy इज इक्वल्स टू dy। और यहाँ से अगर हमने कैपिटल P की वैल्यू निकालनी हो वो क्या होएगी, dy बाई dx। dy बाई dx की वैल्यूज क्या है, यहाँ पे dy की वैल्यू है 2y dy और dx की वैल्यू 2x dx। यहाँ से 2 और 2 कैंसल्स, वी हैव y बाई एक्स dy बाई dx। बट एज वी नो dy बाई dx की वैल्यू क्या होती है हमारे पास स्मॉल p, तो यहाँ पे क्या आएगा y बाई एक्स इंटू p। दैट मीन्स जो कैपिटल P है उसकी वैल्यू आ रही है y बाई एक्स इंटू p। अब हमने जो भी हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशंस हैं, ये है एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल वाई एंड दिस वन, इनको फिल करना है इक्वेशन नंबर 2 में। नाउ सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2, देन इक्वेशन 2 बिकम्स ए एक्स पी स्क्वायर प्लस एक्स एज इट माइनस ए वाई माइनस बी, यहाँ पे कैपिटल P आएगा माइनस कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 0। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन to convert into Lorentz equation, then it can be written as axp square minus प्लस आएगा xp माइनस ayp माइनस bp माइनस y इज इक्वल्स टू 0। और जो हमारे पास थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म है इनमें से हम y कॉमन ले सकते हैं। देन axp स्क्वायर प्लस
एक्स पी माइनस बी पी को एज इट लिखा और माइनस वाई कॉमन लिया, वी हैव ए पी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ अगर हम यहाँ पे ये जो टर्म है इसे राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ए एक्स पी स्क्वायर प्लस एक्स पी माइनस बी पी इज इक्वल्स टू वाई ए पी प्लस 1। और हमें इसे क्लॉरेंट्स इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो हमें y वाली जो टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए। तो इस इक्वेशन को अगर हम ऐसे लिख लें, y इज इक्वल्स टू ए पी प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू ए एक्स पी स्क्वायर प्लस एक्स पी माइनस बी पी। और जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे टर्म्स हैं इसमें हम एक्स पी कॉमन ले सकते हैं। एक्स पी कॉमन लिया तो वी हैव ए पी प्लस 1 माइनस बी पी, ओके, एंड हियर इज वाई ए पी प्लस 1। हमें सिर्फ y ही चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, देन y इज इक्वल्स टू एक्स पी ए पी प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए पी प्लस 1 माइनस बी पी डिवाइडेड बाई ए पी प्लस 1। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, वी हैव y इज इक्वल्स टू एक्स पी माइनस बी पी ओवर ए पी प्लस 1। और ये बन गई हमारे पास क्लॉरेंट्स इक्वेशन, दैट इज y इज इक्वल्स टू एक्स पी प्लस एनी फंक्शन ऑफ p। और हमें पता है कि क्लॉरेंट्स फॉर्म जो होती है उसका इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, सिंपली हमने क्या करना है, p को c फिल कर देना है। तो हम ये जो हमारे पास इक्वेशन है a, इसमें p की वैल्यू को c फिल करेंगे, वी गेट y इज इक्वल्स टू एक्स सी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई ए सी प्लस 1। और अगर जो हमने सब्स्टिट्यूशंस यूज़ की हैं वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था कि कैपिटल X जो है वो स्मॉल एक्स स्क्वायर के इक्वल है और y जो है वो स्मॉल वाई स्क्वायर के इक्वल है, वो फिल करेंगे इसमें। तो वी हैव y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई ए सी प्लस 1 which is required solution of given differential equation by using Lorentz equation. Next example is solve the given differential equation. Now this differential equation is not in Lorentz form, so firstly we have to convert this equation into Lorentz form. Let e की पावर x को हम यहाँ पे u फिल करेंगे एंड e की पावर y को हम v फिल करेंगे। और अगर इसकी डिफरेंशिएशन करें तो ये आएगा e पावर x dx विच इज इक्वल्स टू du एंड हेयर इज ey dy विच इज इक्वल्स टू dv। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ इफ वी वांट द वैल्यू ऑफ dv बाई du देन क्या आएगा, ey dy डिवाइडेड बाई e की पावर x dx एंड e की पावर x की वैल्यू u है और e की पावर y दैट इज v। हियर वी हैव v बाई u dv बाई dx। और यहाँ से हमारे पास अगर मैंने dv बाई dx की वैल्यू निकालनी होगी तो वो क्या होएगी, u बाई v dv बाई du। ओके, नाउ हमें ये पता है कि dv बाई dx जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, स्मॉल p। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p इज इक्वल्स टू u बाई v dv बाई du। ओके, नाउ लेट अगर हम यहाँ पे मान लें कि लेट जो मेरे पास dv बाई du है उसकी वैल्यू कैपिटल p है। ओके, तो ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, दैट इज स्मॉल p इज इक्वल्स टू u बाई v कैपिटल p। नाउ दिस वैल्यू ऑफ स्मॉल p, ओके, जो गिवन p है हमें, एंड दी सब्स्टिट्यूशंस e की पावर x इज इक्वल्स टू u एंड e की पावर y इज इक्वल्स टू v। अब हमने ये सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वेशन 1 में, देन इक्वेशन 1 क्या आएगी हमारे पास, इक्वेशन 1 बिकम्स ओके। नाउ यहाँ से थ्रू आउट द इक्वेशन अगर हम बात करें तो यहाँ पे v जो है वो कॉमन ले सकते हैं, वी हैव u क्यूब u कैपिटल P माइनस यहाँ पे v आ जाएगा डिवाइडेड बाय v प्लस u क्यूब
over v cube p cube and v square is equals to 0। यहाँ पे और सिंपल हो सकता है, ये v square के साथ v क्यूब की दो वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी एंड यहाँ पे एक v लेफ्ट ओवर है और एक v यहाँ पे, हम इसे ओवरऑल कॉमन ले सकते हैं, यू पी माइनस वी प्लस यू क्यूब पी क्यूब डिवाइडेड बाय v इज इक्वल्स टू 0। v तो राइट हैंड साइड जाएगा तो 0 बन जाएगा। देन वी हैव लेफ्ट ओनली विथ यहाँ यू क्यूब दोनों में से कॉमन आ रहा है, देन वी हैव यू पी माइनस वी प्लस पी क्यूब इज इक्वल्स टू 0। यू क्यूब भी ख़त्म हो गया जहाँ से, हमने उसे इग्नोर कर दिया एंड वी हैव लेफ्ट ओनली विथ यू पी माइनस वी प्लस पी क्यूब इज इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ से अगर हम देखें तो v इज इक्वल्स टू यू पी प्लस पी क्यूब, ये कुछ क्लोरेंट्स फॉर्म जैसा बन रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, हमने p की जगह पे c फिल कर देना है। तो अगर हम p की जगह पे c फिल करेंगे तो वी हैव v इज इक्वल्स टू यू सी प्लस सी क्यूब एंड अगर हम अपनी जो हमने सब्स्टिट्यूशंस की हैं वो फिल करें, उसमें हमने u को e पावर x फिल किया है, v को e पावर y फिल किया है, वो यहाँ पे फिल करें तो वी हैव e की पावर y इज इक्वल्स टू ई एक्स इंटू सी प्लस सी क्यूब which is required solution of given differential equation by using Lorentz equation. I hope you like the video. Like, comment, share and also subscribe to the channel. Thank you for watching the video.